right? And it's going to be one of the very interesting session where we are going to be discussing about articleship and all the queries related to it as well. Okay, but before I started, just wanted to check whether my audio and video is clear, right? क्या मेरा audio video clear है, right? Audio video clear है क्या? If it is clear, you can just write clear in the chat box, please. Right? YouTube की जनता आपको भी लिखना है, Zoom की जनता आपको भी लिखना है. रीत इज सेइंग सर मैं YouTube पे जाके लाइक भी करूंगी और लिख के भी आऊंगी. वेरी वेरी गुड रीत जी, वेरी वेरी गुड. तो YouTube पे बता दे whether the audio and video is clear. Waiting for a confirmation. Waiting for the confirmation. ओके, क्लियर क्लियर क्लियर. YouTube का बस बचा हुआ है कंफर्मेशन आने का. आजा भाई आजा. YouTube का बचा हुआ है आने का बस. ठीक है, आई थिंक ग्रेट. वी आर लाइव ऑन YouTube as well and we are live as well as on Zoom. Bang on, great. So great, guys. Really happy to see all of you guys being a part of your CA final journey now. And it was, I think, your dream come true almost, right? So I wanted to know from you guys, how did you felt when you clear your CA inter examinations and you are finally eligible for horticulture? कैसा लगा जरा चैट पे बताइए. राइट, चैट पे बताइए कैसा लगा. How did you felt when you saw that you cleared your CA inter journey and you came to know that you are a CA finalist? Okay. Someone is saying just like a wow. Okay. सर ऐसा लग रहा है जैसे सपना सच हो गया. ओके, वन ऑफ द बेस्ट मेमोरीज ऑफ लाइफ. गुप्ता जी कह रहे हैं मस्त लगा मुझे. अच्छा, वेरी वेरी गुड. ओके, व्हाट अबाउट अदर्स? व्हाट अबाउट अदर्स? यूट्यूब की जनता आपको कैसा लगा? राइट, बहुत खुशी हुई सर. भाई गुड, फाइनली द हार्ड वर्क पेड ऑफ. नाइस. टीयर्स इन मदर्स आई. अच्छा, मैंने पहले ईयर्स पढ़ लिया, मतलब खान से कैसे आंसू निकल रहे बेटा. ठीक है. ओके, ग्रेट फीलिंग, हैप्पीस्ट डे ऑफ माय लाइफ. ओके, सीइंग हैप्पी. चार धाम की यात्रा कर ली. कौन से चार धाम की यात्रा कर ली बेटा आपने? ओके, चलो ग्रेट 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 ग्रेट. इट विल एक्सट्रीमली लाइक हार्ड वर्क हैज पेड ऑफ. नाउ नेक्स्ट इज वे टू शॉर्टन आर्टिकलशिप फॉर्म. बाय ऑन. चलो ग्रेट. ठीक है, तो रियली हैप्पी टू सी ऑल ऑफ यू गाइज हियर एंड कांग्रेचुलेशन इटसेल्फ इज अ स्मॉल वर्ल्ड, right? But nevertheless, the next question always comes is where to start an articleship from, how to apply, where to apply, what all things are needed, right? And what you need to do. Okay. Now, from my journey, I'm going to be sharing you all the things out which are there. We'll be covering doubts during the session as well as at the end of the session. But before I started, I would request all of you to have a pen and paper with you guys because you guys need to note down few important things which might be helpful to you. राइट, जो खाली हाथ आया है वो खाली हाथ ना आए. राइट, रिक्वेस्ट टू प्लीज कैरी पेन पेपर पैरेलली. और जो जूम पे कनेक्टेड है, राइट, आप थोड़ा सा प्लीज वीडियो ऑन कर लीजिए बिकॉज यू वांट टू कीप दिस सेशन इंटरेक्टिव. अदरवाइज आपको फिर वो यूट्यूब लाइव पे देखना पड़ेगा. ठीक है, चलो ग्रेट. बैंग ऑन. Now, before I start, I would like to share my small journey out, right? I don't know how many of you know it, but if you know it, bang on. If you don't know it, you need to listen it out. So when I cleared my CA journey, right, I luckily, unluckily cleared only one group. राइट, हमारे टाइम पे एक ग्रुप पे आर्टिकलशिप स्टार्ट हो जाती थी. आई डिड नॉट वांटेड टू डिफर माय अटेम्प्ट बट आई ऑलवेज वांटेड टू गेट इनटू टॉप सीए फॉर्म. राइट, टॉप सीए फॉर्म एज इन माय ड्रीम वाज टू गेट इनटू बिग फोर. बट नेवरदलेस आई डिड नॉट क्लियर, तो एनीवेज आई स्टार्ट विद अ मीडियोकर फॉर्म. राइट, a top mediocre firm of a city which is a Kirtan and Pandit. It is a top firm in Pune. I started my articleship from there. I cleared my second group. Then after clearing a second group, I took a transfer to EY. वैसे EY में ट्रांसफर लेते नहीं है. But I was exceptional case that I took a transfer in EY and I started my articleship from EY. Then I completed my articleship there, and then I worked with Udan. So I got an exposure of both the things, a mediocre firm plus as well as a big four, right? And I know how you can decide it out and what basis you need to decide. Now let me just go through one small PPT or a small mind map which I prepared for you guys, which you just need to see it out, jot it down, and then we'll be deciding and discussing on what all parameters you guys are going to be selecting it. Okay. So if you want to decide what is the difference between a top CA firm versus mid-size firm,
Then we'll be discussing on how to apply, where to apply, and what all things are there. But let me just start with a very basic thing which most of you know it, and that is Big Fours, right? If I talk about the Big Fours which are there are four major Big Fours, which is EY, KPMG, PwC, and Deloitte. With this, we can also talk about some other big firms like Grant Thornton and BDO, right? These are again a good top firms which are there. With this, you can also put RSM also in the top category, Desai Haribhakti in the top category. So this all are the top CA firms which is there. For each city, there can be a different top firms, right? Just if I talk about Pune, तो पुणे में कीर्तन पंडित, PG Bhagwat, BK Khare, right? GD Apte, these all are the top firms, right? SKP, AVA, Ahuja Valecha, सब top firms है Pune के. If we talk about Delhi, there are other top firms which are there. So what I'll try to do, I'll try to share the list of the top firms which are there. The list will be available in the YouTube video description after this video is over. Repeat. After this video is gonna be completed, what is gonna be happening? YouTube के description में आपको एक file मिलेगी city wise top firm. You can download that file and you can just see it out, which is the top CA firms in your city. Parallelly, you can also write it out on Google, top CA firm in Pune. Then you write CA Mount. The time you write it out, you'll get a list of top CA firms for each cities on a Google, because we have created a blog for each city. Okay, so this all are the top. Now the biggest question is, right, whether I should start my journey from CA firm as in top CA firm, or should I start my journey from a mediocre firm? Okay. Now, what are the parameters based on which you need to select this? These are the multiple parameters based on which you are going to be selecting it. IUG. The first important parameter IUG you need to see it out is the learning. Now, what is the learning you are going to be doing in the top CA firm versus a mid-size firm? Whenever you're going to be joining any of the Big Fours or a top CA firms, the learning is always going to be a department specific. Matlab kya? If you join EY you will be plotted under one department of a stat audit, right? And you need to work for your entire 2 year of articleship into that stat audit domain. Okay. Now, but if you join a mid-size firm, of course, your learning is going to be on a multiple departments, right? You can work under a multiple departments and domains. Like you, someday you'll be doing some GST return, someday you'll be filing income tax return, someday you're doing a tax audit, someday you're doing GST, someday you're doing stat audit. So departments are there. But when I talk about the specific departments of a Big Four, these are the major list of departments. You'll find it out in all the top CA firms or a top Big Four which are there. Mostly, you can see stat audit, internal audit, direct taxation, and international taxation. Many a times you'll hear it out by name of CIT, corporate and international taxes. Transfer pricing, IDT, valuation, and M&A. Very rarely you'll find it out. But yes, they are there, and some other forms. Now, stat audit, everyone knows what stat audit is, right? And this is a domain where you find out the highest amount of vacancies in this domain, right? But in stat audit also, there is a subdivision into 3 departments, sub-departments, which I say, which is called as PMT, IAC, and FS. Right? Depending on which sector, subsector. Say, for example, if you're plotted in stat audit, TMT, you'll be auditing a client which is mostly related to telecommunication, media, entertainment, and technology. So that is something you're going to be a part of it. Similarly, if you're going to be part of IIC, so you'll be part of infrastructure and consumer goods or consumer side, and FS is of financial services like NBFCs, banking companies, and all this stuff. So this is what a stat audit is. Everyone knows what you do in stat audit. You audit the financial statements of a company and then you express an opinion on the financial statements. So that is what a stat audit is. What is internal audit? Right? Internal audit always talks about the processes. What is a process of a company? You check the processes and then you again make a proper internal audit report and then you give a feedback to a company. Yeah, this is what the process is. This all are the gaps in the processes which we will recommend to the company, which they need to incorporate and update it on. So these 2 domains where you find out the highest amount of vacancies. सबसे ज़्यादा vacancies आपको start और internal में ही मिलेगी. Repeat. The highest amount of vacancies you will find it out is in stat and internal audit only. Now the question is, sir, मैं stat audit join भी कर लूँगा. If I join a stat audit, what all exit options I'll be getting after 2 years after I become a CA? Or if I join internal audit, what all exit options I'll be getting if I join an internal audit? Right? Understand one thing. Statutory audit is a domain which will give you the highest amount of exits. You know why? Because in audit, you're gonna be, what work you're gonna be doing? सबसे पहले, you know everything about AS and Ind AS here. Second, you do also tax audit. Third, you're gonna be responsible for all the audit of financial statements, which include 3 things, right? P&L, balance sheet, and cash flow.
plus notes and all this is there. Plus, with this, you will do some certification, right? Some certification work is also something you're going to be doing, right? Plus, also, you'll be also checking some compliances, right? Which is going to be needed for your caro and other stuff, right? So, everything, most of the thing you're going to be learning it all. Now, if you're going to be starting your journey from stat audit, you can easily move after 2 years into finance or easily move to an industry after 2 years, right? Easy exit is available from a stat audit when you start your career from here. Now, let me talk about the internal audit. Internal audit, it's more towards the process, risk, and control. Right? If you love understanding processes, if you love understanding risk, if you want to work under the control side, then this is a domain for you. You can start thinking of getting into this domain because this is again one of the very growing domain nowadays. What is the end outcome you do? End outcome is either you are going to be preparing a process note or you're going to be making a IA report. Right? Also, you might also prepare some RCMs. RCM, risk control matrix, जिसको हम कहते हैं RCM, risk control matrix. अच्छा, इसमें एक और चीज मैं भूल गया, you will be also working under IFC. You will be also doing IFC. What is IFC, guys? Internal financial controls. You'll be also checking the control testing of a company. So, stat audit incorporate much more thing as compared to internal audit. But who should get into internal audit? Right? Those who love business, जिसको धंधा पसंद है, those who wants to add one value to a client, and those who want to, or those who is okay with some controls and processes, है ना? जिसको controls और processes में चलेगा काम, then you can go here. Otherwise, stat audit is a domain for you. Okay, basic differentiation is clear, I hope, between stat audit and internal audit, right? Okay. Now let's move to the next part, which is a taxation. Taxation में the majority of the work you are going to be doing is related to three, which is compliances, advisory, and litigation. अमन कुमार तो क्या टेका लगा के बैठा है, ऐसे मुझे देख रहा है, नालायक है ना? लिख ले भाई, लिख ले, है ना? I know that I look smart, but that does not mean that you look me like this. हाँ हाँ, ठीक है, चलो चलो, किसी और को देखे ऐसे तो समझ में भी आए, मतलब मेरे को क्या देख रहा है बेटा? ठीक है, चलो मजे ले रहा हूँ. So next is taxation. Taxation में one of the major work you are going to be doing is related to three: compliances, advisory, and litigation. Right? Compliances, everyone knows. You need to file GST return, income tax return every monthly, every quarterly. Right? So you're part of compliance team. Advisory and litigation is a growing domain. Say, for example, you need to advise a client that how can a client save a tax? Advisory role. Now imagine that client has saved a tax, but they get a love letter from a government. Didi, Nirmala Didi have sent a love letter saying that you have filed a less return, so you need to ensure that things are proper, right? So litigation, of course, because every company wants to save a tax, want to pay a less tax, and um, every government wants that company should pay more and more tax. किसको जाना चाहिए? जिसको टैक्सेशन पसंद है, those who love taxation, right? And those who think I can build my career into taxation domain. See, if you love reading direct tax, then you can go for direct taxation. If you love indirect tax, you can go for indirect taxation. Okay, this is a basic difference between direct and indirect. Now understand one thing, एक बहुत बढ़िया सी कहावत कही जाती है, direct tax is paid by rich people, indirect tax is paid by everyone. Agree or disagree? Agree or disagree in the chat, please. Do you guys agree or disagree? Direct tax is paid by rich people. And if you want to deal with the rich people, go in direct tax. If you want to deal with everyone, go in indirect tax. Because indirect tax sabhi ko bhar raha hai. Even if you are going to be purchasing a 1 rupees candy, you need to pay indirect tax. Right? So that is what it is. Indirect tax is, of course, it's a growing domain because nowadays a lot of litigation is growing here and real money is in litigation. जब दो इंसान लड़ते हैं तो उनको लड़ाई करवाने के सुलझाने में बहुत पैसा है, right? And definitely this is going to be one of the growing domain where a lot of people are trying to enter nowadays in ITT domain. If you're interested for taxation, if you love reading act, आपको act पढ़ने में मजा आता है, Bear Act, right? If you love to do some research, then you can go for this taxation side. Okay.
But the only downside of a taxation will be on a later stage that exit barrier might be there. If you start your career from taxation, it will be difficult for you to switch into other domains later. So that is what a barrier problem is there. Sir, my doubt is, can I do a 1 year work with top CA firm? Then I switch to industrial training for 1 year. What is the duration of industrial training which is given by institute in new guidelines? 12 months to 9 months. Yeah, 9 months to 12 months. Minimum, you need to work for 9 months. Maximum, you can work for 12 months. Okay, so that is what the duration is. So I'll ask you a favorite question which you want to hear. What is the minimum stipend which is going to be given in an industrial training? Industrial training में minimum stipend कितना है? Anyone knows? 25,000. कितने लालची लोग हो तुम? सच बोलो. 40,000 मिनिमम. बेटा आईसीआई ने जो बोला है नालायक. कितने लालची लोग मिले हैं मुझे. इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में द मिनिमम स्टाइपेंड इज 15,000. ठीक है. So that is there. Not it's not 40,000. It's 15,000. 15,000. And articleship में minimum stipend is depending on the city which you are going to be joining in. I hope you know that, right? So now we need to understand that, sir, can we go for an industrial training if I work 1 year with the top CA firm and then next 1 year in the industrial training? Generally, देखो, if you get a good upskilling or if you get a good industry or if you get a good sector, you can go for this. ठीक है, 1 साल आर्टिकलशिप किया, 1 साल इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कर लिया. It's a good combination. But the problem here is, in 1 year of an articleship, you will not learn much. In a second year, you will get some good responsibility. तो होगा क्या? इधर भी आप बेसिक सीखोगे, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में भी बेसिक सीखोगे. Industrial training will be useful for only those people, those who do not get articleship now in a good firm, and later on they wanted to have some brand name in a CV. उनके लिए industrial training बहुत अच्छा है. Industrial training is of a no use for the people those who is already working with EY now and is trying to go for industrial training, because 1 year में आपने EY में ज्यादा कुछ सीखा नहीं और फिर आपने industrial training switch कर दिया, it's gone. Earlier it was good because it is 2.5 years, so you can go for 1.5 year articleship, then 1 year for industrial training. Earlier अच्छा था, अभी आपके लिए अच्छा इसलिए नहीं है, right? For the people those are starting from top big four or top CA firm, दोनों में आप सीखोगे नहीं. But if you are doing from a mid-size firm or a small firm, and if you want to have a good brand name after 1 year, go for industrial training. The advantage of industrial training is, of course, when it comes to CA placements or campus placements, you will be preferred. You'll get an edge. So that is what it is. Okay. So I think I wanted to ensure that you guys get a clarity on this. Next, moving to transfer pricing. Very interesting and again a growing domain. Simply, very simple example. राइट. एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, देखते हैं आप केस स्टडी सॉल्व कर पाते हो पहले. ठीक है, केस स्टडी देता हूँ. There's a company called as Apple. I hope everyone of you heard the company called as Apple. सुना है एप्पल कंपनी के बारे में? हाँ जी सर, सुना है. रीत कहती है, आफ्टर बिकम अ सीए, मैंने तो मम्मी को बोला था गिव मी एप्पल का फोन. मम्मी ने दिया, राइट? नहीं दिया, दिया नहीं दिया, मजाक कर रहा हूँ. ठीक है. तो आफ्टर क्लियर्ड इंटर, राइट, क्या मिलता है गिफ्ट में? क्या मिला होगा जरा बताइए चैट पे. व्हाट डिड यू गेट एज अ पार्ट ऑफ अ गिफ्ट? चैट पे बताइए सच सच. ओम जी, क्या मिला आपको गिफ्ट? गर्लफ्रेंड ने जो गिफ्ट दिया वो नहीं बताना है ओम जी, राइट? नहीं तो तुम तो भावुक होके कुछ तो गलत ही बोल दोगे. क्या गिफ्ट मिला तुमको? मम्मी पापा ने क्या गिफ्ट दिया? आईफोन मिलेगा ऐसा बोली थी मम्मी ने, लेकिन अभी मैं ओ लेके हो, पैसे वाली पार्टी बैठी है हमारे सेशन में. चलो ठीक है, राइट. नहीं मिली। कोई कह रहा है सीए फाइनल की किताबें मिली. ओके. ओहो हो, समवन गॉट अ गोल्ड चेन. हाय 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 हाय. समवन गॉट आईफोन 13. ओके. तो समवन से फाइनल की बुक्स मिली. ये सबसे अच्छा गिफ्ट मिला है तुमको. अच्छा, और किसी को तो गोल्ड रिंग मिली है यार, क्या बात है. ज्योति जी को गोल्ड रिंग मिली है. ज्योति जी ऐसे पब्लिकली तो मत बोलो ये सब. इनकम टैक्स वाले सुन रहे हैं. ज्योति जी को गोल्ड रिंग मिली है. चलो ठीक है. नाउ say for example, imagine that there's a company called as Apple, and Apple decided to launch its new phone, which is iPhone 16. Right? iPhone 16 Apple ने launch कर दिया. The launch event was in Dubai. ठीक है, ध्यान से सुनेंगे. The launch event was in Dubai and the company has spent 80 crore of rupees to launch a phone. कितने खर्चा किया? 80 करोड़ रुपए दुबई पे स्पेंड कर दिया to launch a phone in Dubai. The company says that since 50% of the sale of iPhone is done in India, so they will apportion the cost which was incurred for a launch of a phone in Dubai to Indian
कंपनी पीएनएल, उसको डेबिट मार देंगे। आई होप यू आर गेटिंग द केस स्टडी। तो वो कह रहे हैं 40 करोड़ इंडियन फर्म अपने पीएनएल में बुक करेगी, और बचा कुचा 40 करोड़ दुबई की एंटिटी अपने फॉर्म में बियर करेगी। सही है या गलत है, बताइए, वेदर इट इज करेक्ट और इनकरेक्ट। अरे चैट पे बोलिए, आपको क्या लगता है, व्हाट डू यू थिंक, वेदर इट इज करेक्ट और इनकरेक्ट? करेक्ट और इनकरेक्ट, आई होप सबको केस स्टडी समझ में आ गया। आईफोन 16 फोन लॉन्च हुआ है दुबई में, जिसपे 80 करोड़ रुपए कंपनी ने खर्चा कर दिया है, राइट। और कंपनी बोल रही है कि फोन तो इंडिया में बिकने वाला है, तो जो कॉस्ट इनकर हुआ है दुबई में, उसको 50% कॉस्ट हम इंडिया में डाल देते हैं, बिकॉज 50% फोन तो इंडिया में बिकेगा। बताइए करेक्ट या इनकरेक्ट। अच्छा, अगर आप आंसर दे रहे हैं तो आप गलत सोच रहे हैं। अगर आप टैक्सेशन के बंदे होते, ट्रांसफर प्राइसिंग के, तो सबसे पहले आप ट्रांसफर प्राइसिंग अरेंजमेंट देखते हैं, राइट। They must have seen कि whether the transaction is at arm's length price or not. Can I debit this cost at India? This is a real case which is going in a court. तो आपको ये सब चीजें में चूल होती है कि भाई ये क्या हो रहा है, राइट। वेदर द ट्रांजेक्शन सही प्राइस पे हो रहे हैं कि नहीं, बिकॉज लॉट ऑफ कंपनीज विल शो अ लॉस इन इंडियन बुक्स एंड प्रॉफिट इन दुबई बुक्स। व्हाई? बिकॉज दुबई में टैक्स कम है, इंडिया में टैक्स ज्यादा है, और टैक्स भरना किसी को पसंद नहीं है, राइट। है ना, ये तुमको तब पता पड़ेगा व्हेन यू स्टार्ट अर्निंग 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख और 30 लाख। मेरे तरफ मत देखो, राइट। So that is what it is. And that is why what is happening here is कि this is very important for you guys as a part of a transfer pricing to see whether the transaction is at arm's length price or not. Right? तो ये एक एरिया है which is growing. यहाँ पे भी will find out some vacancies. So if you're interested, you can definitely try it out here. Next, one of the very interesting and growing domain nowadays is moving towards a valuation and M&A side. Very rarely you'll find out some articleship or internship here. जैसे last time वीडियो ने कुछ अच्छे बंदे हायर किए थे, राइट। पुणे में द फर्म कॉल्ड एज अ ट्रांजैक्शन स्क्वायर हायर करती है फॉर वैल्यूएशन एंड एमएनए, राइट। देयर इज आल्सो अ डोमेन कॉल्ड एज अ एमएनए टैक्स, राइट। देयर इज अ मर्जर बिटवीन टू कंपनीज, सो विद हाउ द टैक्सेशन इज गोना बी इंपैक्टिंग, so this all domains are there which you'll find it out majorly in top CA firms. Okay, this all domains and things you'll find it out in top CA firms. तो ये आप चीज देख सकते हैं, ठीक है। प्लस के अलावा देर आर अदर डोमेन्स विच इज देयर, which you'll find out in some other boutique firms or small firms like project finance, right? Banking, right? So banking is again one of the very growing domain. So you are going to be part of a bank audits, right? जिसे हमने पढ़ा हुआ concurrent audit, पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो, इंटर में है कि नहीं है concurrent audit? नहीं है CA इंटर ऑडिट सिलेबस, यस, नो, पढ़ा पढ़ा कि नहीं पढ़ा, राइट। हैव यू स्टडीड दिस, यस और नो इन द चैट प्लीज। अरे पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो, क्या तुम लोग ऐसे वियर्ड लुक देते, कंकरेंट ऑडिट नहीं पढ़े? चलो ठीक है, you'll get it to see in a CA final with this. So this type of things are gonna be there when you're gonna be looking for an articleship. Okay, ये सब roles available है। Now the only one thing which you need to see, देखो ध्यान से सुनते हैं, कि if you are going to a bigger firm, देखो, if you are going to a bigger firm, you will go into a smaller department and a role. If you are going to be going to a smaller firm, you will get into bigger role। मतलब क्या? छोटी फर्म में आपको टैक्स भी देखना है, ऑडिट भी देखना है, जीएसटी भी देखना है, कंप्लायंस भी देखना है, आपकी इज्जत भी ज्यादा है। बड़ी फर्म में आपको छोटा सा डिपार्टमेंट मिलेगा, एक डिपार्टमेंट, उसमें आपको एक क्लाइंट मिलेगा, दो क्लाइंट मिलेंगे, तीन क्लाइंट मिलेंगे, बट उसमें आपको सब कुछ सीखना है। तो आपको ये देखना है कि मेरे को छोटे तालाब की बड़ी मछली बनना है या बड़े तालाब की छोटी मछली, ये आपको डिसाइड करना है, राइट। सबसे पहला सवाल, राइट। So that is there. Second thing is, whenever you're going to be choosing the articleship form, सबसे पहले मैंने बात किया लर्निंग का और डिपार्टमेंट का, ठीक है। आफ्टर यू हैव डन विद दिस, सेकंड इज कॉर्पोरेट एक्सपोजर। Whenever you are going to be part of a top big four, अब बिग फोर के क्लाइंट जनरली उनका एक लिमिट होता है कि 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख के ऊपर के क्लाइंट एक्सेप्ट करेंगे। So of course there is going to be a proper corporate feeling and a corporate exposure when you're going into top CA firms. मीडियोकर फॉर्म में ये कहीं ना कहीं मिसिंग होता है। इंटरव्यू टफनेस की बात करते हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मीडियोकर फॉर्म्स के इंटरव्यूज भी स्टार्ट हो गए हैं, टॉप सीए फॉर्म्स के इंटरव्यूज भी स्टार्ट हो गए हैं।
right? There are a lot of top CA firms where interviews have started. There are a lot of mediocre firms where interviews have also started. When you talk about the top CA firms, right, of course, there's a proper process which you need to go through. And you can just start searching on LinkedIn, kya process hai, but this is what the process is. Majorly 3 to 4 rounds of interviews are going to be there. First round might be an aptitude round or an English communication round or a Watson test, which is going to be conducted by a company. ठीक है, जिसमें आपका टेक्निकल टेस्ट भी हो सकता है, वर्सन टेस्ट भी हो सकता है, एप्टीट्यूड टेस्ट भी हो सकता है, तो दैट इज गोना बी देयर. Few companies will be also conducting group discussions. Okay. After that is done, we'll move to second round, which is there. Second round is mostly going to be an HR round, right? HR round में क्या होगा, आपका communication interest, and they'll ask you one favorite question: why Big Four, why Big Six? By the way, guys, if you don't know, there are a lot of vacancies which are already out on LinkedIn for all the Big Four which is there. And it is important for you, if you're interested, you need to gather some good references and reach out to the people and start applying there. After that is done, the third round, which is going to be your confidence round, where they will ask you some basic Excel if you're trying for audit. They'll ask you how to put a formula for VLOOKUP, HLOOKUP, sum if, pivot table, ये सब पूछेंगे. Plus with this, they are going to be also checking your technical skill sets. Right? कि technically आप कितने sound हो and are you able to clear it out. For a start audit, they'll be asking you some questions based on accounting standard, which is your favorite accounting standard. ये सब सवाल आपको पूछे जाएंगे. And you should be good enough to answer those questions also. एक अच्छा काम मैं आपके लिए करूंगा, इस वीडियो के एंड में जाना है आपको यूट्यूब चैनल पे, डिस्क्रिप्शन में 2 फाइल मिलेगी. फर्स्ट फाइल टॉप सीए फर्म्स सिटी वाइज, सेकेंड फाइल फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन डोमेन वाइज. हाँ, राइट. तो स्टार्ट ऑडिट में क्या इंटरव्यू क्वेश्चंस पूछेंगे उसका आपको एक बेसिक फाइल मिल जाएगा. यू जस्ट नीड टू डाउनलोड इट एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स आल्सो एंड यू नीड टू यूज इट आउट. कौन सी 2 फाइल मिलेगी राजा? एक टॉप सिटी वाइज फर्म्स, सेकेंड विल गेट अ फाइल फॉर डोमेन वाइज इंटरव्यू क्वेश्चन भी आस्क्ड. ठीक है, दोनों फाइल आपको यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे. तो दैट इज गोना बी मैनेजर राउंड. आपका टेक्निकल और कॉन्सेप्चुअल टेस्टिंग होगा. एंड लास्ट राउंड इज गोना बी पार्टनर राउंड, वेयर दे विल टेस्ट योर कम्युनिकेशन, कॉन्फिडेंस एंड आर यू अ लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल रिसोर्स और नॉट. ये सब चीजें आपको पूछी जाएंगी. एंड मेनी अ टाइम्स दे माइट से यू दैट कि वी विल नॉट अलाउ यू फॉर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, तो तभी आपको बोलना है ओके सर आई एम फाइन विद इट. ठीक है, तो दैट इज व्हाट इट इज. तो ये होता है इंटरव्यू टफनेस. आफ्टर दिस इज डन, let's talk about the stipend. Ha. Your favorite. Starting will be 15 and then it will go to 20. Right? 15 and 20, this is what the stipend is. Like, I don't know what is a third year stipend will be giving it to you. And if you go for some top mediocre firms, nowadays all the mediocre firms have revised their stipend. It is 4, 5, 6 or depending on which city you're joining in. Right? और कोई अच्छी top बड़ी firm रही तो 8 or 9 with the stipend. ठीक है? Now study leaves का problem अभी नहीं आएगा because it's a fixed study leave for 6 months for all of you guys, right? So it's a standardized everywhere. चाहे mid-size firm जाओ या small firm जाओ, study leave is standardized. Now who should join top firm or who should join mediocre firm? Simple. Those who want to have a brand name, those who want to do a job on a long-term basis, and those who want to explore or those who want to exposure of a top firm. तो दूसरे बड़ी फॉर्म ज्वाइन करना चाहिए, टॉप सीए फॉर्म ज्वाइन करना चाहिए. बट ऐसा नहीं है कि सर आई वांटेड टू स्टार्ट माय ओन प्रैक्टिस, सर आई वांटेड टू हैव अ फैमिली कल्चर और आई वांटेड टू लर्न एवरीथिंग, देन यू शुड जॉइन अ मीडिया फर्म. ठीक है, so that is what it is. Please understand, this is a competitive era and you need to ensure that you are applying to the companies as soon as possible, as soon as your resume is completed. The delay you do, the higher chances that you will not get placed early. Right? जितना लेट करोगे उतना आपके लिए दिक्कतें बढ़ते जाएगी. Let's talk about last thing, work timing. In Big Four, the work timing will be 10 a.m. to बस 10 a.m. to. And in the mediocre firm, the timing will be 11 to 6 or 7 or 10 to 6 or 7 or 8. What is there? Right? अच्छा मजाक कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है 10 a.m. to मतलब ठीक है, sometimes it is gonna be 8 or 9. Right? कभी कभी होगा तो you might need to do a late setting as well. Right? So that is what the work timing is. ये सब चीजों के बेसिस पे then you need to decide whether I want to go for top firm or not. So if you decided कि I wanted to go to top firm, 2 काम करना है. सबसे पहले you should start applying for all the big 4, big 6 companies which are there. LinkedIn पे super active हो जाओ. Right? You need to start searching the HR, those who have posted a vacancy, reach out to your दीदी भैया senior
right, or the people whom you know on that Big Four and forward your CV. Second, parallelly also top start applying in a top CA firms of all those cities. Hello, right? जैसे टीआर चड्डा एक बड़ी फर्म है, तलाटी एंड तलाटी बड़ी फर्म है, राइट? वी सिंगी बड़ी फर्म है कलकत्ता की, आप गेटिंग इट? तो ये सब बड़ी फर्म्स है हर एक सिटी की, विच यू शुड स्टार्ट अप्लाइंग एज वेल, बिकॉज ऐसा नहीं है कि आप बिग फोर के चक्कर में बैठे और जो है वो भी चली गई, राइट? So that is first. Second, lot of companies will be asking you कि whether your ITOC is completed or not. I don't know how many have completed it. If you have done it, bang on. If you have not done it, do it ASAP. Because companies want that your ITOC is completed. That is second. Third, right? Now the question is, sir, ये सब तो ठीक है. The question is how we can reach out to the people out and how we can find out our references. But LinkedIn is only a platform which will help you out to ensure that you can get a good references via LinkedIn, right? So what you need to do, I'll just show you one or two pro tips which you can follow, right? जो आपको फॉलो कर सकते हो और जिसके थ्रू आपको एक अच्छी वैकेंसीज मिलना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है? तो लिंक्डइन पे आपको सिर्फ एक काम करना है, दो तीन कीवर्ड्स दिखा रहा हूँ वो चुपचाप से खेलना है. लिंक्डइन पे जाके यू जस्ट नीड टू राइट, क्या करना है मैं इधर दिखाता हूँ. इधर सर्च बार में आर्टिकलशिप हायरिंग लिखना है, बस एंटर. The time you write articleship hiring, click on post. Once you click on post, date posted last week. खत्म. इतनी है, बस आपको फिल्टरिंग करना है और स्क्रॉल डाउन स्क्रॉल डाउन स्क्रॉल डाउन स्क्रॉल डाउन करते जाना है, ठीक है? आपको बहुत सारी हायरिंग मिल जाएगी, बहुत सारी हायरिंग मिल जाएगी, ठीक है? जैसे देखो बीडीओ की है, बट ये बंदा, कब बंदे ने डाला है ना, आपको एचआर ढूंढना है. ऑलवेज फाइंड आउट एन एचआर. ये सिर्फ डेटा कलेक्ट कर रहा है कितने लोगों ने अप्लाई किया, 392 पीपल ने. आपका नंबर कब आएगा भगवान जाने. You need to find out some good references into that company and then you need to apply. Scroll down, scroll down, scroll down, scroll down, scroll it down, scroll it down. ढूंढ स्क्रॉल करते जाओ. अच्छा सर मुझे सिटी चाहिए, तो इसमें आप डाल दो एंड से, फॉर एग्जांपल मुझे पुणे चाहिए, तो इस तरीके से आप उस पर स्टार वार लगा दीजिएगा. इससे क्या होता है, डिफाइंड सर्च आएगा एंड पुणे, आर्टिकलशिप हायरिंग एंड पुणे, ठीक है? देखो टीआर चड्डा आर्टिकलशिप हायरिंग फॉर पुणे, मिल गई आपको एचआर, मिल गई. मिल गई क्या? बस थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा. कुछ काम के नहीं रहेंगे उनको इग्नोर कर देने का, राइट? कुछ काम के रहेंगे, कुछ काम के नहीं रहेंगे, उनको इग्नोर कर देना. जो काम के हैं उनको पकड़ लेना, जो काम के नहीं है ये देखो, वीडियो हायरिंग पुणे लोकेशन, ठीक है? तो थोड़ा सा सर्च करना पड़ेगा गाइस. जो कंपनी चाहिए उसका भी आप लिख सकते हो, आर्टिकलशिप हायरिंग, राइट? एंड यू कैन जस्ट राइट ऑल्सो ईवाई. जैसे आप लिखोगे आपको सर्च इंजन में मिलते जाएगा. थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा भाई. बस अभी मैं फास्ट वीक हटा रहा हूँ, 24 आवर कर रहा हूँ, बिकॉज आई नो दैट रिजल्ट अभी अभी आया तो ताजा ताजा डला होगा कहीं पे, राइट? आई कैन जस्ट स्क्रॉल इट डाउन, ग्रोइंग अ टीम. आर्टिकलशिप लिखता हूँ, नीवा लिखता हूँ. इट्स ऑल अबाउट द कीवर्ड गेम. जैसे आप डालोगे वैसे आता जाएगा. कुछ उल्टा फुल्टा ना दिख जाए बस, मेरे को वो डर है. या ऐसा होगा, मैं एक और कीवर्ड चालू कर देता हूँ, ईवाई एंड मे 24. है ना, ये क्वालिफाइड सीए का है. मैनेजर है ना, हायर कर रही है ना सीए फ्रेशर. ईवाई वैल्यूएशन रोल. थोड़ा सा आप सर्च करोगे ना तो आपको दिखना चालू हो जाएगा, लोगों ने डाले हुए हैं काफी सारी वैकेंसीज गाइस, ठीक है? दो तीन तो दिख गई और थोड़ा स्क्रॉल करना पड़ेगा, बिकॉज क्या है, लिंक्डइन में बहुत कचरा डलने लगा है आजकल. चलो तो इसका एंड को चेंज करते हैं. हाँ अभी क्लीन हो गया एकदम. Hopefully. ठीक है. तो पैरेलली सेकंड थिंग, दिस इज वन यू नीड टू डू. सेकंड, आप हर एक कंपनीज के ना एचआर ढूंढो, एचआर,
राइट, वो ऑल आर द एचआर ऑफ रिस्पेक्टिव कंपनीज। द टाइम यू सर्च इट आउट यू स्टार्ट गेटिंग आउट कि भैया दिस ऑल आर द एचआर। कुछ नहीं है भाई, गूगल पे लिखना होता है ईवाई, ईवाई पुणे ऑफिस एचआर। ठीक है, सिर्फ इतना लिखना है गूगल पे, खत्म। द टाइम यू राइट इट आउट आपको दिखना चालू हो जाएंगे। ठीक है, ईवाई मुंबई ऑफिस एचआर, सिंपल, बस इतना लिखना है आपको और उनके कनेक्शन में ढूंढना है कि भैया हु आर द पीपल, राइट, एंड देन यू कैन स्टार्ट पैरेलली कनेक्टिंग विद इट। सेकेंड, देखो भैया बिग फोर में जाना है तो कोई वो इंसान को ढूंढो, जैसे मैंने इधर लिखा ईवाई मुंबई ऑफिस एचआर, ये एचआर मिल गई मुंबई ऑफिस के, खत्म। पैरेलली देखें इनके साथ साथ कनेक्शन में कौन कौन है, एंड देन यू स्टार्ट कनेक्टिंग विद दोस पीपल। बट अगेन आई एम सेइंग यू, इंटरनल रेफरेंस विल ऑलवेज हेल्प यू आउट टू गेट इनटू गुड कंपनीज। इंटरनल रेफरेंस ढूंढिए, दीदी भैया सीनियर को पकड़िए, दोज आर ऑलरेडी वर्किंग देयर, बिकॉज दे विल बी हैप्पी टू रेफर यू आउट। एंड देयर लॉट ऑफ बिग फोर्स जहाँ पे और कंपनीज में जहाँ पे ड्राइव्स चल रहे हैं, ड्राइव्स, राइट। तो दैट इज व्हाट इट इज। चलो, तो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू कवर। सर, तो एचआर को डायरेक्टली रेज्यूम भेज देना चाहिए, ए और बी विच एवर इज अर्लियर, जिसको भेज सकते हो भेज दो, राइट, विच इज देयर। तो दैट इज व्हाट आई से। सर, इज बिग फॉर इंपॉर्टेंट, मिड साइज फॉर्म इज नॉट गुड? नहीं बेटा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, राइट, सभी फॉर्म्स अच्छी है, मैंने अभी बता दिया आपको किस पैरामीटर पे चूज करना है। इफ यू नॉट गेटिंग टॉप फॉर्म्स यू कैन ऑल्सो ट्राई टीयर वन टीयर टू फॉर्म्स ऑफ एवरी सिटी, राइट। वो नहीं मिल रहा है तो फिर आप टीयर थ्री फॉर्म में जा सकते हो, अगर आपका प्रैक्टिस का प्लान है, अगर आपको सब कुछ सीखना है तो दैट इज व्हाट यू नीड टू डू। नेक्स्ट सर, हेलो सर, आई गॉट ऑफर लेटर फ्रॉम बुटीक इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फॉर्म, शुड आई गो एंड कंसिडर इट ओवर बिग फोर? देखिए देव, आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको डोमेन में जाना है या ब्रांड में जाना है, राइट। डोमेन में जाना है या ब्रांड में जाना है? अगर आपको डोमेन अच्छा मिल रहा है, गो फॉर इट, राइट, ब्रांड बाद में ले लेना। तो दैट इज व्हाट आई से। अब अगर आईबी में फ्यूचर में रहना है तो आप डोमेन पे रहिए, ब्रांड पे बाद में हो जाएगा। ठीक है, यस। अब नेक्स्ट दो तीन इंपॉर्टेंट चीजें, राइट, विच आई विल बी हैप्पी, राइट, इफ यू कैन डू इट। दो तीन इंपॉर्टेंट चीजें जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहला, राइट, वी हैव क्रिएटेड अ बॉट फॉर यू गाइस व्हिच इज tools.cmonk.com। अरे क्या होगा, अरे नालायक, व्हाइट बुक कौन शेयर किया? हाँ, तो वी हैव क्रिएटेड अ बॉट फॉर यू गाइस व्हिच इज आर्टिकलशिप स्कोरर। ये आर्टिकलशिप स्कोरर पे आप जाइए, यहाँ पे आप अपना डिटेल्स डालिए, 10 12th मार्क्स, फाउंडेशन मार्क्स, इंटर मार्क्स, अटेम्प्ट्स, राइट, एवरीथिंग, एंड देन यू अपलोड योर रेज्यूमे एंड चेक व्हाट इज द स्कोर यू आर गेटिंग फॉर एन आर्टिकलशिप। अगर स्कोर अच्छा नहीं है तो आपको रेज्यूमे थोड़ा ठीक करना पड़ेगा। दैट इज वन व्हिच यू हैव क्रिएटेड। इट्स अ फर्स्ट एआई इंटरव्यू बॉट, एआई बॉट व्हिच वी हैव क्रिएटेड फॉर यू गाइस फॉर आर्टिकलशिप। इसमें अपना स्कोर एक बार जरूर चेक कर लेना बिफोर यू आर गोना बी अप्लाइंग। आई एम शेयरिंग दिस लिंक इन द चैट। People those who are watching on YouTube, you can go to tools.cmonk.com/articleship scorer, tools.cmonk.com, इधर जाओगे आर्टिकलशिप स्कोरर मिल जाएगा। दैट इज फर्स्ट। ठीक है, सेकंड, इसके साथ साथ सीवी में कुछ एज होना चाहिए आपके। एज मतलब सब अनएक्सेप्शनल वर्क और कुछ एडिशनल थिंग्स होनी चाहिए। वो एक सड़ा सा सीवी मत लेके जाना जहाँ पे 10th 12th एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, हॉबीज और खत्म। एचआर दूर से भगा देगा देख के, राइट, बिकॉज दैट इज द सीवी विच एवरीवन इज कैरिंग इन। तो क्या एडिशनल हम डाल सकते हैं? जैसे आप कुछ एडिशनल कोर्सेज कर सकते हो विच इज ऑल्सो देयर विद अस, या कहीं और से भी कर सकते हो। सबसे पहले आपको अगर एक्सेल सीखना है तो बेसिक और एडवांस एक्सेल हमारे वेबसाइट पे, एडवांस एक्सेल एक्सेल आप देख सकते हो, दैट इज देयर, इफ योर एक्सेल रिकमेंडेड है देख लो। तो एडिशनल और टूल्स करने हैं तो वो सीख लो। सेकंड, अगर आप ऑडिट के लिए जा रहे हो, बहुत ही प्यारी स्टार्ट ऑडिट की मास्टर क्लास बनी हुई है, यू कैन चेक आउट अ स्टार्ट ऑडिट मास्टर क्लास, राइट। इसको कंप्लीट कर लो, 20 आवर्स का कोर्स है, अपने सीवी में डाल देना, इंटरव्यूअर बोलेगा भाई यू ऑलरेडी नो एन ऑडिट विच इज डन इन अ बिग फोर, लेट अस हायर हिम। दैट इज सेकंड, सबके पास एक एज रहेगा। सिमिलरली इंटरनल ऑडिट है तो इंटरनल ऑडिट जो भी डोमेन में जा रहे हो उस डोमेन की आप मास्टर क्लास कर सकते हो, इससे आपको एक और एज मिल जाएगा। या तो एक्सेल सीख लो या तो मास्टर क्लास सीख लो, दैट इज देयर। ऐसी जेनरिक चीजें मत डालना सीवी में, राइट, विच विल मेक एन इंटरव्यू फील दैट कि यार दिस इज अ कैंडिडेट हु इज वेरी जेनरिक, इट डज नॉट नो मच गुड थिंग्स अबाउट। ठीक है, तो दैट इज देयर। सर, शुड आई सेंड अ रेज्यूमे टू मल्टीपल पीपल इन द सेम फॉर्म? ऐसा मत करो बेटा, कॉन्फ्लिक्टिंग नहीं करना चाहिए आपको, यू शुड बी स्टिकिंग टू वन और टू पीपल आउट फ्रॉम अ सेम फॉर्म व्हिच इज देयर। ओके, तो टेलीग्राम पे एचआर आईडी सर्कुलेट हो रहे हैं, कैन वी मेल देम? हाँ कर दो ना, कोई दिक्कत नहीं है, और भी विच एवर इज अर्लियर। हाँ कोई बात नहीं है ना। हाँ, सर ने कह रहा है आपने हमें गिफ्ट कर दिया। हाँ, जो मेरे बैच के स्टूडेंट थे एटीएम वाले, इस बैच के, मैंने उनको दिया है गिफ्ट, जैसे उनको मिला होगा।
ओवरसीज प्लेसमेंट्स के लिए भी आप आर्टिकलशिप के लिए ट्राई कर सकते हो, बट थोड़ा टफ रहेगा यार, आपको फिर दुबई दुबई जाना पड़ेगा उसके लिए. इज इट नेसेसरी टू मूव टू मुंबई टू अचीव समथिंग इन लाइफ? हाँ 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 हाँ. व्हाट आर द प्रोस एंड कॉन्स ऑफ मूविंग देयर? तो मैं बताता हूँ अपनी जर्नी. मैंने क्लियर्ड सीए इंटर, राइट. मेरा वैसे तो आई एम बेस्ड आउट ऑफ सिटी कॉलेज बोल दिया, इट्स अ प्लेस इन नागपुर, तो मैं नागपुर से हूँ अभी के लिए, समझो. ठीक है. अब मेरे घर वालों को ये चॉइस लेना था कि इसको कहाँ भेजे, बिकॉज आई वांटेड टू परस्यू इन आर्टिकलशिप. तो पापा ने बोला कि चलो लेट्स सेंड हिम टू पुणे, राइट. तो उन्होंने मुझे पुणे में सेंड किया, एंड आई एम इन पुणे करेंटली, राइट. आई डिड माई आर्टिकलशिप फ्रॉम पुणे ओनली. बट जनरली क्या होता है, इफ यू मूव टू टीयर वन सिटी तो आपको थोड़ा सा पीयर ग्रुप अच्छा मिलेगा, कंपटीशन मिलेगा, क्लाइंट्स बड़े मिलेंगे, तो दैट इज एज यू गेट इट आउट. टीयर टू टीयर थ्री सिटी में यही दिक्कत आएगा कि आपको क्लाइंट थोड़े छोटे मिलेंगे, राइट. अब अगर मुंबई में रहोगे तो ऑडिट करोगे रिलायंस का, राइट. अगर वही चीज अगर आप नागपुर में आ गए तो आपको नागपुर की कोई, राइट, मुन्ना लाल या दामू जी की कंपनी मिलेगी. बस वही फर्क रहेगा. यहाँ पे टर्नओवर रहेगा 50,000 करोड़, वहां पे टर्नओवर रहेगा 50 करोड़. आई बी गेटिंग इट. तो बस एक वो एक चीज होता है. सेकंड होता है पीयर ग्रुप और जो फ्रेंड्स आपको मिलेंगे, तो दैट इज है. सर आई टेकन मोर देन 3 अटेम्प्ट, कोई बात नहीं बेटा, राइट. अभी आप रेज्यूमे प्रिपेयर करें और अप्लाई करें, दैट इज व्हाट आई. Sir, I got an offer from an organization where their exposure is to valuation and international taxation, FEMA advisory at Ahmedabad. Please get yes, अगर मिला है तो चाहिए अच्छे से, राइट. आपसे बहुत इंपॉर्टेंट एडवाइस लेना है, कहना है वे नंबर, बेटा चैट पे पूछ लो, अभी पूछ लो, राइट, कोई दिक्कत नहीं है. मेरे दिन भर सेशन ही चलते रहते हैं यार, मैं कैसे फोन उठाऊंगा बताओ. ड्यू टू सम रीजन माई टेंथ रिजल्ट इज 65%. इट इज मैंडेटरी टू मेंशन इन सीवी, रिकमेंडेड. मैंडेटरी तो कुछ नहीं है, रिकमेंडेड है. कैन आई स्टार्ट गिविंग एन इंटरव्यूज बिफोर कंप्लीटिंग ओसी एंड आईटी? द आंसर इज यस. तो टेक्निकल राउंड का डर लग रहा है, ग्रुप वन क्लियर हो गया है, ग्रुप टू अब क्लियर हो गया है टैक्सेशन की वजह से, ब्ला ब्ला ब्ला. टैक्सेशन देखो, टेक्निकल का दिक्कत डर लेने का जरूरत नहीं है, राइट, बिकॉज देर आर टू रीजन टू इट. एक तो मैं मटेरियल शेयर कर दूंगा. सेकंड, आपको प्रैक्टिस करना है, तो फाइंड आउट अ गुड फ्रेंड अमंग योरसेल्फ एंड स्टार्ट प्रैक्टिसिंग इट. और भी डर लग रहा है टेक्निकल का, तो मास्टर क्लास देख लो, उसमें सब कुछ कवर्ड है टेक्निकली. ओके. इफ आई चूज फॉर प्रैक्टिस कैन आई ज्वाइन बिग फोर? यस यू कैन ज्वाइन इन, ऐसा कुछ नहीं है. फिर आप स्टार्ट ऑडिट उस डोमेन की आप प्रैक्टिस वर्क कर सकते हो, विच डोमेन है स्टार्टिंग योर करियर पर. ठीक है. अब यूट्यूब से कुछ डाउट लेते हैं, यूट्यूब वाले बच्चे जो भी डाउट है पूछ लीजिए, राइट. सर सीए फाइनल रजिस्टर्ड ऑप्शन नहीं आ रहा, बेटा आ जाएगा, इसका टेंशन ना लीजिए, राइट. नेक्स्ट इज, ओके, यूट्यूब पे तो और कोई डाउट नहीं है, किसी को पूछ लो और भाई. सर डू मिड साइज फॉर्म अलाउ ट्रांसफर केस ऑफ इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग? बेटा वही है, 3 महीने पहले यू नीड टू अपडेट इट टू द सीए फॉर्म, एंड इफ यू अपडेट इट देन यू कैन गो फॉर ट्रांसफर. सर हाउ आर चंडीगढ़ ऑफिसर्स फॉर ईवाई केपीएमजी वीडियो एंड दिस, प्लीज रिस्पॉन्ड. यस दे आर गुड, कोई दिक्कत नहीं है. सर आई एम गेटिंग इंटरनल ऑडिट इन ईवाई एंड इन्वेस्टमेंट बैंकिंग इन अ बुटीक फॉर्म. वांट टू डू इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इन इन्वेस्टमेंट बैंकिंग गोल्डमैन, व्हाट टू डू. एक बार आप इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म का मुझे नाम बता दो तो मैं बता पाऊँ. आई एम रेडी टू relocate pan India. My ITOC is completed. I want to get into top CA firm. बट मुझे रेफरेंसेस नहीं मिल रहे. बेटा लिंक्डइन चलाना पड़ेगा आपको शुभम जी, राइट. लिंक्डइन चलाओ, लोगों से कनेक्ट करो. देयर लॉट ऑफ सीनियर्स हु आर वर्किंग इन द सेम फर्म और कंपनी, उनसे आप रीच आउट करें. सर आई एम फ्रॉम एटीएम बैच बट फ्रॉम लास्ट ईयर, मुझे गिफ्ट कर दो स्टैट ऑडिट का मास्टर क्लास. नहीं बेटा, वो अभी वाली बैच को ही था, पुराने वालों को नहीं था बेटा, राइट. अभी वालों की फीस भी ज्यादा थी, ठीक है, तो टाटा से इसलिए उनको गिफ्ट किया. आई वांट टू परस्यू वैल्यूएशन और एफडीडी. एफडीडी में बेटा आर्टिकलशिप नहीं मिलती है, तो दैट इज देयर. आप स्टार्ट ऑडिट से स्टार्ट कर सकते हो अगर एफडीडी में जाना है तो, एंड देन यू कैन गो फॉर इट. एवरेज स्कोर शुड बी अबव 60 इन योर टूल, राइट, विच इज गोना बी हेल्पिंग यू आउट. एक्सेल आपको यार बेसिक तो आना ही चाहिए, वी लुकअप, एच लुकअप, पिवट टेबल, राइट, ये सब तो बहुत बेसिक है, ये तो आना ही चाहिए. ओके. एक बार फॉर्म का जो नाम है, राइट, उस फॉर्म के नाम से आप सर्च कर लो, हाउ मेनी पार्टनर्स आर देयर, उनका हिस्ट्री देख लो, तो दैट, उनका क्या बैकग्राउंड था, अगर अच्छा है तो ज्वाइन कर लेना.
विदाउट आईटी कंप्लीशन इट इज नॉट पॉसिबल टू स्टार्ट योर आर्टिकलशिप। बिग फोर से कितने दिनों में कॉल आ जाता है बेटा? आ जाएगा, अगर आपका सीवी सिलेक्ट हो जाएगा तो आ जाएगा। हाउ टू टेक अ फॉलो अप? बेटा फॉलो अप का एक मेल होता है, टेम्पलेट होता है फॉलो अप मेल, आप देखिए वो आप भेजिए कंपनी को, तो उससे आपको एक बढ़िया सा रिस्पॉन्स आ जाएगा। दस गेटिंग अ रेफरेंसेस गारंटीज एन आर्टिकलशिप इन अ ड्रीम फर्म? नहीं, ऐसा नहीं है बेटा। शुभम सिन्हा जी, ऐसा नहीं है कि रेफरेंसेस मिल गया तो सिलेक्ट हो गए बेटा। राइट, व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज आपको इंटरव्यू क्लियर करना पड़ेगा उसके बाद। ठीक है सर, बीसीजी वालों का लेते हैं कि नहीं? बीसीजी वाले थोड़े से बायस रहेंगे रैंकर्स के प्रति, राइट, बट लेट्स सी। फ्रेंड, हाउ मेनी डेज गॉट अ कॉल फ्रॉम कंपनी आफ्टर इंटरव्यू? बेटा ये तो आप पे डिपेंड करता है, एचआर पे डिपेंड करता है, और रेफरेंस पे डिपेंड करता है। प्रोफाइल सिलेक्ट हो गया तो एक हफ्ते के अंदर आ जाएगा, नहीं हुआ तो फिर भीड़ लग गई है, समझ जाना फिर। शुड बी डायरेक्टली मेल आर सीवी टू एचआर और वेट फॉर वैकेंसी? नहीं बेटा, ए और बी विच एवर इज अर्लियर। अगर वैकेंसी मिली तो वैकेंसी मिली तो कर दो, नहीं तो फिर डायरेक्टली सेंड इट टू एन एचआर। डस जेपी मॉर्गन हायर आर्टिकल्स? नहीं जी, जेपी मॉर्गन इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए हायर करेगा। सर, कैन आई अप्लाई फॉर अ बिग फोर आफ्टर क्लियरिंग थर्ड अटेम्प्ट? द आंसर इज यस। There are too many attempts and the score is also not good. Should I select it in Big Four? टफ है, बट ट्राई करने में क्या बुरा है। सर, whoever manages, I connected with all of them for resume. I sent to all of them. ठीक है, बढ़िया। सर, आईटी नहीं हुआ है तो इंटरव्यू दे सकते हैं क्या? बिल्कुल दे सकते हैं। Can I join Big Four Stat Audit and after becoming CA, I learn taxation and can start a good practice? Yes, कर सकते हो, बट अगेन आपके ऊपर आप कितना सीखने के लिए रेडी हो। कॉल्स नहीं आ रहे हैं बट बिग 20 से? बेटा अप्लाई करना पड़ेगा, रेफरेंसेस लगाने पड़ेंगे। डू दे आस्क अ क्वेश्चन रिगार्डिंग एक्सेल इन इंटरव्यू? द आंसर इज यस, दे आस्क अ क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस। टाइम लेफ्ट विद आईटी कोर्सेज एंड प्रिपरेशन ऑफ टेक्निकल राउंड, शुड आई अप्लाई? बिल्कुल अप्लाई करना है अभी से। द थिंग्स इज माय ओन फॉर्म इज देयर। अच्छा, आपके पापा पापा की फॉर्म है तो ठीक है, आप दूसरी जगह से करिए, पापा क्या है तो कभी भी काम कर सकते हैं। सर, आईटी बैचेस मिल नहीं रही है तो तब तक के क्या करें? आप तब तक के मास्टर क्लासेस कर लीजिए, आप प्रिपेयर कर लीजिए, आप स्किलिंग करिए तो हो जाएगा। I've taken your master class for financial modeling. I want to get into IB, but the problem is there. I have attempted. अटेम्प्ट तो आईबी में जाना है तो बेटा इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के थ्रू जाओगे। अभी आर्टिकलशिप में थोड़ा टफ रहेगा टू गेट इनटू आईबी। राइट, इनकॉर्प करके एक फॉर्म है मुंबई में, उधर ट्राई करिए, वो आपको आईबी में दे सकती है। राइट सर, आई एम फ्रॉम अ साइंस बैकग्राउंड, 10th या 12th मार्क्स मैटर करते हैं क्या? बिल्कुल मैटर करते हैं। कैन आई अप्लाई फॉर अ मल्टीपल डोमेन्स इन द सेम फॉर्म? कर सकते हो, बट वो प्रोफाइल ब्लॉक हो जाएगा 6 महीने के लिए अगर एक बार सिस्टम में चढ़ गया तो। हाउ टू प्रिपेयर फॉर अ टेक्निकल राउंड? सिलेबस इज ह्यूज। तन्वी जी, आपको है ना वीडियो के बाद एक डिस्क्रिप्शन में फाइल मिलेगा यूट्यूब के। राइट, आप के पास, सभी के पास मेरा यूट्यूब चैनल है, नहीं है तो जाके सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे। मैं अभी सबको है ना यूट्यूब की वीडियो लिंक दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे जितने भी लोग हैं, राइट, आप जाइए चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किया है तो। प्लस ऑल्सो यू टेक द लाइक कर देना, और इसमें ना थोड़ी देर बाद, आफ्टर 15 minutes after the session is over, you will find out two files: top list of CA firms city wise. Second, you will find out a interview questions which are going to be asked for different domains. ठीक है, तो आप जाइए फटाफट फटाफट, राइट, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, बिकॉज ऑल ऑफ द इंपॉर्टेंट अपडेट्स फॉर यू गाइस आर गोना बी देयर एंड यू शुड नॉट मिस इट आउट। सर, इन इंटरव्यू, लास्ट इंटरव्यू आस्क मी इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज सजेस्ट। तो आपको रिसर्च करके जाना है, उनको आपको पूछना है हाउ वाज बिन योर जर्नी विद ईवाई, राइट, हाउ डू यू फील बीइंग अ मैनेजर और डायरेक्टर एट दिस फर्म? इस टाइप के क्वेश्चन आपको उनको पूछना है। ठीक है, तो नेक्स्ट डाउट लेते हैं। सर, आई वांट टू गो इनटू मिड साइज फर्म, विच कोर्स वुड बी गुड टू गो फॉर अ वेबसाइट? तो आप जिस डोमेन में जाना चाहते हो उस डोमेन का कर लो। स्टार्ट ऑडिट का आई वुड रिकमेंड ओम जी आपके लिए, आप कर सकते हो। सर, डीटी पुराना फाइनेंस एक्ट में पढ़ा था, तो क्या आर्टिकलशिप डीटी में वापस नया फाइनेंस एक्ट? देखो, डीटी में जाना है तो बेटा फाइनेंस एक्ट तो पढ़ते ही रहना पड़ेगा। राइट, तो दैट इज व्हाट इट इज। विच डोमेन ऑफ आर्टिकलशिप आर बेनिफिशियल एज पर यू टू गेट इनटू आईबी इन फ्यूचर? बेटा अभी तो आप स्टार्ट ऑडिट कर लो या बाकी डोमेन्स कर लो, या वैल्यूएशन मिलता है तो वो कर लो। बाद में यू नीड टू स्विच फॉर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इफ यू वांट टू गेट इनटू आईबी। ठीक है, यूट्यूब से डाउट लेते हैं guys, काफी सारे लोग यूट्यूब पे, इसलिए। सर, क्लियर माय बोथ ग्रुप टुगेदर इन फर्स्ट अटेम्प्ट, हैव नो रिस्पांस फॉर बिग फोर? बेटा फॉलो अप डालना पड़ेगा, यू नीड टू गेदर सम गुड रेफरेंसेस।
Sir, I like join Big Four for practice particular department, and after I join my own firm for a taxation, can you suggest? बेटा कर सकते हो, बट वही है कि आजकल नीश का जमाना है, राइट? इफ यू गो टू जर्नलिस्ट डॉक्टर लेगा 300 रुपए। इफ यू गो टू न्यूरो सर्जन, फीस ही 10,000 रुपए। बस बात वही है, न्यूरो सर्जन बनना है कि सर्दी खांसी का डॉक्टर बनना है। पैसा दोनों में है, राइट? मजा दोनों में है, बट आपको डिसाइड करना है। सर, बिग फोर में सीएफए पढ़ने का टाइम मिलेगा? टफ है, यू वोंट गेट दैट मच टाइम। ठीक है, तो दैट इज डन। और किसी को कोई डाउट्स है, दुख दर्द है? राइट, एटीएम वालों का हम एक और सेशन लेंगे गाइस, आप टेंशन ना लें। जो आर्टिकलशिप बैच ट्रेनिंग मास्टर क्लास के हमारे जो स्टूडेंट्स है पुराने, राइट, आपका एक और सेशन लूंगा मैं। अब वो कल रहेगा आपका, जहाँ पे मैं और डिटेल में आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ, आपको थोड़ा सा और हेल्प कर देंगे। दैट इज दैट। ठीक है सर, वैल्यूएशन में प्राइवेट इक्विटी में जान जा सकते हैं क्या? वैल्यूएशन से प्राइवेट इक्विटी में जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं। स्टार्ट ऑडिट में ज्वाइन करना है आर्टिकलशिप, तो क्या डीटी के सवाल आएंगे इंटरव्यू में? रेयरली पूछा जाएगा, बट बेसिक टैक्स ऑडिट क्या होता है ये सब थोड़ा बहुत पूछेंगे आपसे, पता नहीं। ठीक है, रीडिंग मटेरियल वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आ जाएगा, तो वो आपको मिल जाएगा। सर, एक बार बता देना कि बिग फोर में टाइमिंग क्या होता है? हाँ 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 हाँ। बेटा, कोई वर्क टाइमिंग नहीं होता है, जब काम रहेगा तब काम करना पड़ेगा, बात खत्म। What all things to be mentioned when you're introducing yourself? विवेक जी, मित्तल जी कह रहे हैं जब इंट्रोडक्शन कर रहे हैं, तो बेसिक हु यू आर, वेयर यू आर बेस्ड आउट ऑफ, 10th 12th, देन योर एकेडमिक्स। एकेडमिक्स कवर हो गया, फिर उसके बाद आपका बेसिक जर्नी, राइट, सीए का जो था वो, और उसके साथ साथ कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज है तो मेरे यूट्यूब वीडियो में सर्च कर लेना, हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, एक छोटा सा वीडियो मिल जाएगा आपको। वैल्यूएशन एंड एम टैक्स डिफरेंस है? द आंसर इज यस, दोनों डिफरेंट है। एवरीडे तो लगता नहीं होगा ना कि नॉर्मली व्हाट आर द टाइमिंग्स? नहीं, ऐसा नहीं होता है, राइट? कभी कभी लेट सेटिंग्स होती है। कैन यू अप्लाई फॉर द सेम फॉर्म इन डिफरेंट लोकेशन? ट्राई कर लो, राइट, मिल गया तो बढ़िया है। क्या है दोनों में फर्क? बेटा, इस पे अपन एक डिफरेंशिएशन, एक सेशन ले लेंगे वैल्यूएशन और एम टैक्स का, राइट? अभी तो कवर नहीं कर पाएंगे उसको। टेन टू एट होता है बेटा जनरल टाइमिंग बिग फोर का, 10 to 8। डर गए यार तुम लोग तो टाइमिंग सुन के। हाउ मेनी राउंड्स आर देयर इन द टॉप 20 फॉर्म? डिपेंडिंग, एक या दो राउंड रहेंगे, विच इज देयर। व्हाट आर डॉक्यूमेंट्स टू कैरी इन द वॉक इन ड्राइव? वेरी गुड। एक रेज्यूमे लेके जाना है, और पास के जो मार्कशीट वगैरह वो लेके जाना है, तो रेज्यूमे की 3 4 कॉपी शुड बी देयर। ठीक है, ड्रेसिंग प्रॉपर करके जाना। हम्म, देखो, आप कहना है गेट बिग फोर, और ये आपके एप्लीकेशन पे है गाइस, आप कैसे अप्लाई कर रहे हैं, कैसे रेफरेंसेस लगा रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है। आई वांट टू वैल्यूएशन बेस्ट है या सीआईटी? बेटा, आपको डिपेंड करता है कि आपको कौन से रोल में इंटरेस्ट है। वैल्यूएशन एकदम अलग है, सीआईटी कॉर्पोरेट एंड इंटरनेशनल टैक्स। टैक्स पसंद है, वैल्यूएशन पसंद है, सबसे बेहतर आपको डिसाइड करना है। I have applied for Deloitte in pre-result hiring. Now I could not apply again. Could not even apply through other email ID. तो कोई बात नहीं, आपका वो आईडी ब्लॉक हो चुका है फिर। ठीक है, तो दैट इज व्हाट इट इज। ओके, शुड वी इंक्लूड द रेफरेंसेस नेम इन आवर सीवी? नहीं बेटा, रेफरेंसेस के नाम सीवी में नहीं डालना है, आपको उनसे कनेक्ट करना है। ठीक है, तो कनेक्ट कैसे करोगे आप? राइट, लिंक्डइन के थ्रू, या तो आपके दीदी भैया सीनियर जो होंगे उनसे आप कनेक्ट करिए। सर, कब से स्टार्ट होंगे इंटरव्यू अप्रोक्सीमेट? बेटा, इंटरव्यू स्टार्ट हो चुके हैं, काफी लोगों का हो भी गया है, राइट? ठीक है, तो आई थिंक आई कवर्ड ऑल द क्वेरीज आउट। अगर मुझे पता है कि कुछ और डाउट्स रहेंगे, तो इफ यू स्टिल हैव एनी मोर डाउट्स, विल बी हैप्पी टू टेक इट। आपको क्या करना है? आपको कुछ नहीं करना है, यूट्यूब पे जाना है, कमेंट सेक्शन में जब जब डाउट लिख देने का, बगैर सोचे, राइट? वट एवर डाउट्स यू हैव, go to YouTube video, put a comment section is there for you, put your doubts there, we'll be happy to solve your doubts, right? Because I know there are few doubts which are still left. Second, YouTube के description ढंग से check कर लेना, right? Whatever the things are there, just check it out properly so that you can get all the important things. ठीक है?
तो गाइस विश यू ऑल द बेस्ट सभी को, बढ़िया से आप पढ़िए, आर्टिकलशिप के लिए रीडिंग मटेरियल भी दे दूंगा मैं और थीसिस फॉर्म्स भी बता दूंगा। अप्लाई करें खटाखट 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 खटाखट, राइट, एंड सो दैट यू कैन गेट इनटू द गुड आर्टिकलशिप फॉर्म। ठीक है, चलो। So wish you guys all the best for your interviews, right? And I hope you'll clear and get into the good articleships, right? And definitely अगर टाइम होगा तो मास्टर क्लास भी देख लेना। ठीक है।